Welcome to my dear online students. This is another session for class 12th chemistry. In the previous sessions we have completed up to Reolte's law, vapor pressure that we have discussed in the previous sessions. And you know that what is vapor pressure, what are the factors affecting vapor pressure. We also discussed there Reolte's law for volatile solution containing volatile solute and volatile solvent and non-volatile solute, and also the solution containing both the components solute as well as solvent volatile. We also predicted the relationship between mole fraction and vapor pressure by plotting a curve there. Also we discussed there the relationship between Reolte's law and Dalton's law of vapor pressure that we have discussed in the previous session. In today's session, we are going to discuss important topic, that is colligative properties, and most oftenly questions are coming from this portion. In the previous year, in 2020, question has come from the, I think, depression and freezing point. That is a colligative property that has come here. Now, what are colligative properties or democratic properties? इनको colligative properties किनको कहा जाता है और democratic properties क्यों कहा जाता है? Colligative properties are denoted by CP. Colligative properties are denoted by, we are representing them by CP. You know that with the solution there are various properties associated. Various properties are associated. Various properties are associated. These are associated with solution, with solutions, and these properties depend upon two factors. One is nature of solute and solvent, and another is amount of solute and solvent. These are the two factors on which the properties of the solution depend, amount of solute and solvent. Suppose there are various properties related with the solution. These properties are boiling point, vapor pressure, freezing point, osmotic pressure, electrical conductivity, etc. These are the various properties: boiling point, vapor pressure, freezing point, osmotic pressure, electrical conductivity, which are related with the amount of solute and solvent and nature of solute and solvent. Besides these properties, these all properties depend upon these two factors: amount of solute and solvent and nature of solute and solvent. But there are some properties of the solution which wholly and solely depend upon the amount of solute and solvent, or I mean to say, we depend only upon the amount of solute. Those properties of the solution which depend only upon amount of solute, which depend only upon number of particles of solute, or which depend only upon number of moles of solute, those properties are called colligative properties or democratic properties. जिस तरह डेमोक्रेसी में अगर हमें किसी पर्सन को चुनना होता है, वहां पे खाली नंबर मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है कि किसने वोट डाला, अमीर ने वोट डाला, गरीब ने वोट डाला, उस पर मैटर नहीं करता है. जो कोई भी इलेक्टेड पर्सन होता है डेमोक्रेसी में, उसका जो इलेक्शन होती है, इसकी जो सिलेक्शन होती है, वो नंबर की बुनियाद पे होती है, वो नेचर की बुनियाद पे नहीं होती. इसी तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सोल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज है जो खाली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेंगे, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेंगे, या सीधे हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे जो डिपेंड करते हैं. इसीलिए इनका और एक नाम रखा गया है डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी खाली नंबर पे डिपेंड करता है. वहाँ पे रंग, नस्ल, जात पात को नहीं देखा जाता है.
वहाँ जितना ज़्यादा तादाद होगा वोटर्स का किसी के हक में, वही इलेक्ट होता है, वही सिलेक्ट होता है। यहाँ पे भी कि अगर आपको सोल्यूशन की कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखनी होगी, कितनी है, कितना वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो वो खाली डिपेंड करता है उस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं। तो अगर हम इसके आधार पर डिफिनीशन लिखेंगे अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो हम लिख सकते हैं सीपी में, आप शॉर्ट में लिखूंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज of the solution which depend only upon number of solute particles present in the solution, and are independent from nature of solute particles। सोल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे नहीं डिपेंड करते हैं, बल्कि सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ सोल्यूट particles are known as colligative properties। और इनको और एक नाम है इनका डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, ये आपको याद रखना है। अब कौन है, 4 टाइप्स ऑफ colligative properties are here। 4 types of colligative properties have been seen in the solution। properties फर्स्ट कौन है, शाबाश, RLVP जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, रिलेटिव लॉन्ग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें हमारा आ गया क्या, P0 माइनस PA डिवाइड बाई, हमने वहाँ पे P0S लिखा था, P0S, सॉरी P0, और हम ऐसे लिखेंगे P0A डिवाइड बाई P0A इज इक्वल टू, शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB, हमने सीधे लिखा था इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसके बराबर आया था। तो यहाँ पे B के बदले हमें क्या आया था शायद, क्योंकि B क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जितना नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा उतना रिलेटिव लॉन्ग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ पे रिलेशन आई थी, वहाँ पे रिलेटिव लॉन्ग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमने ऑलरेडी किया है। इसके बाद और एक चीज़ है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लाउरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से भी डिनोट करते हैं यहाँ पे। तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से। They are the representations of the colligative properties. Now, as already we have discussed the relative lowering of vapor pressure, if you say
सपोज अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या मतलब होता है नंबर पे डिपेंड करना। सपोज मैं आपके पास दो सॉल्यूशन में बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा x, इसका नाम रखूंगा y। इसमें भी 1 kg सॉल्वेंट लूंगा वाटर, और इसमें भी मैं क्या लूंगा, शाबाश, 1 kg सॉल्वेंट वाटर। तो दोनों में मास जो है सॉल्वेंट का वो दोनों में क्या है, सेम है। अब इसमें मैं क्या डालूंगा, शाबाश, 30 ग्राम यूरिया इसमें मैंने डाले, और इसमें मैंने क्या डाला, शाबाश, 90 ग्राम ग्लूकोज। अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि इन दो सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, शाबाश, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ शाबाश, क्या शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मैंने आपको यहाँ पे दिया ये x सोल्यूशन है, ये y सोल्यूशन है, इसमें भी 1 kg सॉल्वेंट वाटर लिया, इसमें भी 1 kg सॉल्वेंट वाटर लिया। अब इसमें मैंने 30 ग्राम यूरिया डाला, इसमें मैंने 90 ग्राम ग्लूकोज डाला। तो अगर हम मास के हिसाब से जाएंगे